Yeah, so this is going to be our ninth session so far, and I can already see that there are many partners who have been joining each month. So thanks to all of you who have joined. Um, the first agenda item for today is going to be a discussion over how Commons Connect, is being used in natural resource management planning and integrated into the Yuktadhara platform. So earlier this week, we also attended a workshop by Pradhan, where we learned how Commons Connect is driving community-driven NRM planning there, and how it's being taken to the Yuktadhara platform in different blocks in Jharkhand. So that is going to be the first agenda item. And then following that discussion, we will also be formally launching our Landscape Stewardship Network dashboard, um, which we intend that it's going to serve as a single stop platform for different partners to learn what kind of efforts are being taken by CSOs across India in terms of natural resource management, and learn from each other. What kind of plans are they making? What are the efforts? What are the impact? So that's going to be the second item. Um, Z yes. So Y. welcome. I think we have more people joining in. Welcome, everyone. So for the first discussion, I would like to invite Kanat Ghosh from Pradhan. He is a team coordinator there, and he has been working there for over 16 years now. His core research शेयर interests करना है integrated natural resource हाँ management and शेयरिंग agriculture. है Uh, Wait, I can hear some echo. Can I request वो आई everyone? डिड अभी एक्चुअली से पहले वो स्क्रीन में वही नहीं आ रहा था Okay. Yeah. So over the past decade and a half that Kannad is with Pradhan, um, his work has basically, spanned empowering women-led institutions, advancing WASH and gender initiatives, building robust BRC bioresource center ecosystems, and his current focus is um, bridging digital technology and grassroots governance. So over to you, Kanaji. You can now start presenting. The floor is yours. Uh, Thank you, Toro, for giving me this opportunity and share my experience around the core stack and the bridging all kind of things with Juktadhara. So I need to share my screen, so please allow me to share my screen. You can start sharing, I think. Is it not allowing you? Yes, yes. A host disabled attendee screen sharing दिख रहा है. Uh, okay. Okay. Yes, I think you can share now. हाँ, yes, no. Okay. दिखाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी. ओके. सो एक्चुअली हम लोग झारखंड का जो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दे रहा है. रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हम लोग इसको एज ए पायलट इनिशिएटिव लिया था गवर्नमेंट के साथ. तो वही हम रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो एक्सपीरियंस है वो बोलेंगे. तो बेसिकली जो हम लोगों का आइडिया था कि कॉमन कनेक्ट ऐप को इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो डीडीसी के साथ हम लोग थोड़ा सा डिस्कस शुरू किए थे डीडीसी के साथ. तो डीडीसी के साथ जो डिस्कस किए थे, हम लोगों का बेसिकली 6 ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग जो प्लानिंग करेंगे तो
वो एकदम 3-4 साल के लिए एक एसेट प्लानिंग हो जाएगा और वो रीच टू वैल्यू प्लानिंग रहेगा। साथ में हमारा जीआईएस इंटीग्रेशन हो सकता है। एंड जुक्तोधारा जो पोर्टल है उस पोर्टल में भी हम ये कॉमन कनेक्ट ऐप के थ्रू प्लान को इंटीग्रेट कर सकते हैं। और एक एसेट बैंक हम लोगों का क्रिएट हो जाएगा। बार बार हमको गांव में एसेट प्लानिंग करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। और साथ में कैपेसिटी भी एनहांस होगा। जो हमारा सिस्टम में जो लोग काम करते हैं, साथ में एई जेई बीपीओ या तो ग्राम रोजगार सेवक, इन लोगों का एक कैपेसिटी बिल्ड हो जाएगा। साथ में हम लोगों का एक फोकस था कि 40% प्लान इन द नेम ऑफ हो जाएगा। तो डीडीसी के साथ एक जब डिस्कस हुआ था, डीडीसी हम लोगों को एक अच्छा सजेस्ट किया कि डीडीसी ने बोला कि आप लोग एक काम कीजिए, पहले एक जीपी का एक गांव में करके हमको उसका जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर कीजिए, उसके बाद ही हम लोग इसको जाके करेंगे। तो हम लोगों का एक्चुअली फोकस था 94 जीपी में 294 विलेजेस में कॉमन कनेक्ट ऐप के थ्रू प्लान करना है। तो हम लोग 4 टोटल प्लानिंग प्रोसेस का स्टेप फिक्स किए थे कि पहले हम लोग पायलट करेंगे, देन कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, देन प्लान करेंगे, देन हम लोग इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे। तो हम लोग टोटल 94 जीपी को और 294 विलेजेस को, जो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, उसका हम लोग टारगेट लिए थे। तो वो टारगेट लेने के बाद हमारा जो पायलट था अ, पाली जीपी का, पाली विलेज में हम लोग इसको पहले पायलटिंग किए थे। तो पहले जो पायलट हम लोग किए थे उसमें पूरा जो प्रोसेस है आईएनआरएम प्लानिंग का, कि पहले कॉन्सेप्ट सीडिंग मीटिंग होगा जीपी एंड विलेज लेवल में, देन रिसोर्स मैपिंग होगा, ट्रांजेक्ट वर्क होगा, देन रीच टू वैली प्लान होगा थ्रू एनआरएम प्रिंसिपल के द्वारा। तो उसमें हमारा मुखिया, पीआरआई मेंबर्स, विलेज कम्युनिटी, ये सब भी हमारा एंगेज था। तो देन हम लोग जब एक गांव का पूरा प्लानिंग कर लिए थे, टोटल हमारा 89 स्कीम, एनआरएम स्कीम आइडेंटिफाई हुआ था थ्रू कॉमन कनेक्ट ऐप। और उसमें हम लोग जाके डीडीसी के साथ जब एक्सपीरियंस शेयर किया, नॉट ओनली कि प्रधान इसमें हम लोग डीडीसी के साथ एक्सपीरियंस शेयर किया, साथ में ब्लॉक लेवल जो फंक्शनरीज था वो लोग भी उसका एक्सपीरियंस शेयर किया, साथ में जो जीपी लेवल फंक्शनरी था वो लोग भी उसका एक्सपीरियंस शेयर किया। एंड they were very happy around this app and the plan entry in the जुक्तोधारा पोर्टल। ये सब में बहुत अच्छा वो लोग एक्सपीरियंस शेयर किया। तो ये जो पायलटिंग फेज था, इसमें काफ़ी सारा दिन मोटा मोटी टाइम लगा, क्योंकि एक नया चीज़ है, हम लोग नया शुरू कर रहा है। तो इसमें मोटा मोटी एक 15-20 दिन का टोटल टाइम फ्रेम लगा। लेकिन हम ये चीज़ बोलेंगे कि ओनली हमारा विलेज लेवल जो आईएनआरएम प्लान है, एनआरएम प्लान है, उसको अगर हम गांव में कितना दिन में किए और जुक्तोधारा में कितना दिन में एंट्री किए, उसका अगर हम टोटल बोलेंगे तो हमारा मैक्सिमम टोटल सब कुछ करने के लिए विलेज लेवल में 3 to 4 डेज लगा था। तो ये होने के बाद डीडीसी ने पूरा लेटर इशू कर दिया था सबको, ब्लॉक और जीपी को, कि ऐसे करके करना है। देन हम लोगों के पास एक रिक्वेस्ट आया कि कैपेसिटी बिल्डिंग भी करना है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करने के लिए आगे बढ़ा, और साथ में डीडीसी भी जब जरूरत पड़ा एक एक लेटर निकलते हुए गया, जो हम लोगों का काम को और आसानी किया। और डीडीसी ने भी बहुत अच्छा से ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को भी वो एक्सेप्ट किया और देखा भी, इसका जो इंटीग्रिटी है अंदर में घुस के सब कुछ उन्होंने भी बहुत अच्छा से समझा चीज़ों को हम लोगों से। तो पायलटिंग के बाद हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग ने घुसा। तो कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे हुआ कि हम लोग पहले जितना सारा एई जेई बीपीओ कंप्यूटर असिस्टेंट ये सब था, इन लोगों को जीआईएस मैप प्रिपरेशन, साथ में कॉमन कनेक्ट ऐप का ओरिएंटेशन कैसे फील्ड लेवल में करेगा, वो सब हम लोग एक 3 डेज ट्रेनिंग हुआ। 3 डेज ट्रेनिंग के बाद एक फील्ड लेवल भी ट्रेनिंग हुआ कि कैसे हम लोग प्लान को करेंगे। देन फील्ड लेवल भी ट्रेनिंग हुआ था सब कुछ का बारे में। तो ये जो हम लोग एक रिसोर्स पूल तैयार किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो ट्रेनिंग हुआ, ब्लॉक लेवल में जो ट्रेनिंग हुआ, यही हम लोग नॉट ओनली प्रधान, ये लोग भी तैयार होके जाके दूसरे को भी, जीआरएस लोगों को भी ट्रेनिंग दिया था। तो इसमें टोटल हम लोग ब्लॉक लेवल जो फंक्शनरीज है, टोटल 6 ब्लॉक में किया था। तो 6 ब्लॉक से टोटल ब्लॉक लेवल फंक्शनरी 60 फंक्शनरी को हम लोग ट्रेनिंग दिए थे। देन जीपी लेवल में 125 लोगों को हम लोग ट्रेनिंग दिए थे। देन जेएसएलपीएस का जो स्टाफ है उनका
लगभग 100 लोग होगा, तो टोटल मोटा मोटी 285 लोगों को हम लोग ट्रेन किया था अराउंड द कॉमन कनेक्ट ऐप एंड जुक्तोधारा में कैसे उसको इंटीग्रेशन होगा, कैसे एंट्री करेगा, स्कीम बैंक बनेगा, वो कहाँ पे प्लांट हो रहेगा। तो ये एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोसेस जैसे है कि कॉन्सेप्ट सीडिंग, देन कैपेसिटी बिल्डिंग अराउंड जीआईएस, देन पीआरए रिसोर्स मैपिंग किया था, बेस डाटा कलेक्शन, मतलब एसिड मैपिंग कैसे होता है कॉमन कनेक्ट ऐप में, वो सब का पूरा एकदम डिटेल ट्रेनिंग हुआ था। और ये जो ट्रेनिंग हुआ था इसमें जो हमारा बीच बीच में, क्योंकि हम लोगों के पास भी इतना मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं था, कैपेसिटी भी नहीं था कि, और हम लोगों को उतना जानकारी भी नहीं था कि इतना बड़ा पैमाने में करने के लिए हमारा कॉमन कनेक्ट ऐप में क्या इशू आ सकता है। तो इसमें जब छोटा-मोटा कुछ-कुछ इश्यू आ रहा था, हम लोग भी मतलब कोर्स टेक जो टीम है उसके साथ बहुत क्लोज़ली एंगेज हुए थे, और वो लोग भी बहुत अच्छा से उसको रिज़ॉल्व कर दिया था, ताकि हमारा जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोसेस चल रहा है और हमारा जो 294 विलेजेस में जो प्रोसेस चल रहा है उसमें, ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोसेस है और जो हम लोग पायलट इनिशिएशन किए थे, टोटल में हम लोगों का ये पूरा सब कुछ सिस्टम प्रोसेस में लाने के लिए टोटल मोटा मोटी 30 डेज के आसपास टाइम लगा था। देन हम लोग घुसे थे प्लानिंग प्रोसेस में। तो प्लानिंग प्रोसेस में जब घुसे, ये 294 विलेजेस का जब प्लानिंग प्रोसेस में घुसे, तो इस प्लानिंग प्रोसेस में हम लोग देखे थे टोटल हमारा 294 विलेजेस का टोटल प्लानिंग करने के लिए हमारा टोटल 30 डेज हम लोग टाइम दिए थे। 30 डेज में हमारा टोटल 294 विलेजेस का प्लानिंग हो गया था। तो प्लानिंग में हम लोगों को जब जब जैसे डीडीसी ने, हम लोग हर दिन या तो हर वीक एक फॉलोअप मीटिंग भी करते थे कि कितना ब्लॉक में कितना स्कीम आया है, एवरेज प्लानिंग कितना आया है, कितना गांव में हमारा जीरो स्कीम हो गया, उस गांव में हमको फोकस करना है, या जिस गांव में जीरो स्कीम आ गया उस गांव में क्या इशू है। ये सब हम लोग बहुत अच्छा से रिलेट कर पा रहे थे, ताकि, क्योंकि ये जो कॉमन कनेक्ट ऐप है इसमें बहुत अच्छा से हम लोग जो डैशबोर्ड बनाए हैं, वो डैशबोर्ड से हम लोगों को डाटा डेली हम लोगों को मिलता था। ये एक बहुत हम लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ, और डीडीसी ने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से मॉनिटरिंग भी कर रहा था, हम लोग जब रिपोर्ट देते थे तो उसको भी बहुत आसानी हुआ कि कैसे इसको मॉनिटरिंग और करना है, और उसको भी आसानी हुआ कि एक रिपोर्ट हम एक मतलब झलक में दिख पा रहा है एट ए ग्लैंस। तो ये बहुत एक हम बीच का डाटा यहाँ पे दिखा रहा है। ये देखिए ब्लॉक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हम लोग बनाए थे कि कितना विलेज टोटल है एक ब्लॉक में, कितना टोटल स्कीम आए हैं, एवरेज कितना स्कीम है पर विलेज में, और जीरो स्कीम विलेज कितना है। तो ये जो एट ए ग्लांस हम लोग रिपोर्ट बना के प्रेजेंट करते थे कि कौन सा जगह में हमको और ज़्यादा ध्यान देना है, कितना जगह में थोड़ा सा और इंटेंसिव अटेंशन देना है। ऐसा करके हम लोगों को रिपोर्ट बनाने में वो डैशबोर्ड का डाटा बहुत मदद किया है। तो ये एक हम लोगों को बहुत अच्छा से मदद हुआ है, और साथ में ये जो सिस्टम है गवर्नमेंट सिस्टम, वो लोग भी मतलब एक तो जुक्तधारा से प्लानिंग वो लोग करते थे, लेकिन इस टाइप का डाटा उन लोगों को कभी मिलता नहीं था। और साथ में जो लोग फील्ड लेवल में भी प्लान किया, मतलब ये ऐप का इतना इजी एक्सेस है, चाहे वो ऑफलाइन है चाहे वो ऑनलाइन मोड है, कोई भी मोड में वो लोग बहुत इजीली डाटा ले रहा था। और सबसे जो अच्छा एक हुआ था कि हम लोगों का जिस जगह में हम खड़ा हो पा रहा है उस जगह में क्या एक्चुअल प्लानिंग लेना है, वो भी हमारा ऐप बहुत अच्छा से बता दे रहा था, ताकि वो लोग जो कम्युनिटी से दबदबा आते हैं कभी कभी कि हमको कभी ये करना पड़ता है कि बोलना पड़ता है, कम्युनिटी का डिमांड रहता है कि हम कोई भी जगह में कभी कभी मान लीजिए डाग ऑयल करेंगे, तो डाग ऑयल वहां पे हो ही नहीं सकता है, लेकिन हमारा ये ऐप बता दे रहा है कि वहां पे डाग ऑयल होगा नहीं। तो ये ऐप दिखा के भी कम्युनिटी बहुत अच्छा से मोबिलाइज भी होता था। तो ये भी उन लोगों के लिए एक टूल हो गया दिखाने के लिए, जो साइंटिफिक टूल है, और बोलने के लिए भी आसानी हो गया कि देखिए यहाँ पे डागोइल होगा नहीं, यहाँ पे आपका कोई स्टेगर ट्रेंच हो सकता है, या तो और कोई मॉडल हो सकता है, या तो हॉर्टिकल्चर हो सकता है। तो ये सब में भी बहुत अच्छा से हम लोगों को मदद हो पाया। और इसके बाद हम लोगों के पास जो डाटा आया, उस डाटा को हम लोग इस ढंग से एनालिसिस कर पाया कि स्कीम आइडेंटिफिकेशन, जैसे मान लीजिए कि हमारा टोटल स्कीम कितना आया,
और कितना परसेंट है, एवरेज स्कीम कितना है, टोटल कितना पंचायत वगैरह है। तो इसके बाद हम लोग और एक एनालिसिस किया कि एनआरएम स्कीम का जो है, यहाँ पे देखिए टोटल हमारा 5286 के आसपास स्कीम आया था, जिसमें एनआरएम स्कीम का हम परसेंटेज हिसाब से बंटवारा किया कि पार्कुलेशन टैंक हमारा 1402 मतलब 26.5% आया, प्लांटेशन आया 1364, सीसीटी, एससीटी, ईसीबी ये आया 14%, दीदीवाड़ी जो स्कीम है वो 688, सेड्स डिफरेंट काइंड ऑफ गोट सेड्स वगैरह जो आया 669, फील्ड वार्निंग आया 232, ईसीडी एलवीसीडी आया 170। तो ये अगर हम देख सकते हैं कि पार्कुलेशन टैंक एंड प्लांटेशन टुगेदर 52.3% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टोटल हमारा प्लान आया, जो दिख रहा है कि एक जो हमारा सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन का एक अक्रॉस ब्लॉक्स जो है हमारे पास डिमांड आया। तो वो डिमांड आने के बाद हमारा हाथ में बहुत सारा डिमांड हो गया। अभी उसको हम जुक्तोधारा में धीरे 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 जैसे हमारा डिमांड आएगा वो हम हमारा बजट देखते हुए उसको हम लोग एंट्री करते चला। तो उसके साथ साथ हर एक ब्लॉक का हम लोग प्लांटेशन, एससीडी, ये हर एक ब्लॉक का हम लोग एक एनालिसिस किया और ये एनालिसिस हर एक ब्लॉक के पास भी हम लोग प्रेजेंट किया। और प्रेजेंट करने के बाद वो लोग भी एक झलक दिख पाया। और कुछ कुछ इश्यूज आया, जैसे रामगढ़ ब्लॉक अगर हम लोग देखेंगे, रामगढ़ ब्लॉक में ज़्यादातर कोल्ड माइन भी आता है। तो कोल्ड माइन के जैसे कुछ कुछ गांव में हम लोग कुछ प्लान नहीं ले पाया, क्योंकि वहाँ पे वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हो नहीं सकता है एनआरएम वाला कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर। साथ में हमारा जो लूज बोल्डर स्ट्रक्चर जितना सारा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाथर ठीक से नहीं मिलने का कारण भी कुछ कुछ जगह में हम लूज बोल्डर चेक या तो फील्ड एससीटी वाला कुछ कुछ स्ट्रक्चर नहीं ले पाया। तो ये सब एनालिसिस हमको जो डाटा कम्युनिटी कनेक्ट ऐप से मिला, ये डाटा हमको बहुत रिफ्लेक्टिव डाटा मिला कि कौन सा ब्लॉक में कैसे हम और स्ट्रेटेजी करेंगे, कौन सा स्ट्रेटेजी में हम आईएनआरएम काम को करेंगे। ये जो डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग एक होता है। रमजान कर रहे हैं। सॉरी, कुछ क्वेश्चन है? तो नहीं ये नहीं। जो अच्छा, तो ये जो डाटा ड्रिवन हमको डिसीजन मेकिंग का एक प्रोसेस हमको मिला है कम्युनिटी कनेक्ट ऐप के थ्रू और डैशबोर्ड के थ्रू, ये बहुत रिफ्लेक्टिव था, जो डीडीसी ने भी अप्रिशिएट किया बहुत। साथ में हमारा ब्लॉक लेवल जो प्रमुख है या तो बीडीओ है, वो लोग भी बहुत इसको अप्रिशिएट किया। और रिसेंट जो एक डेवलपमेंट हुआ और एक हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के साथ बातचीत किया इसको आउटपुट या आउटकम को लेते हुए, तो दे आर वेरी इंटरेस्टेड टू रन दिस ऐप एंड ए जॉइंट एक वेंचर हम लोग जाने के लिए सोच रहा है। और साथ में कल एक हमारा और एक अच्छा मतलब स्टेप हम लोग मतलब करने के लिए कोशिश कर रहा है कि झारखंड का जो कमिश्नर है, कमिश्नर को हम लोग एक प्रेजेंटेशन देने के लिए सोच रहा है रामकोट का एक्सपीरियंस को लेके, ताकि ये पूरा झारखंड में कैसे इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसको रन कर सकते हैं, ताकि जुक्तोधारा पोर्टल में इसको और अच्छा से इंटीग्रेट हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हम लोग जुक्तोधारा पोर्टल का बात करते थे पहले, या तो ब्लॉक लेवल या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल या तो पंचायत लेवल, मतलब वो लोगों का एक अंदर मतलब एक डर दिखता था कि अरे जुक्तोधारा पोर्टल मतलब एक बहुत कॉम्प्लेक्स मतलब सिचुएशन दे मतलब वो लोग शेयर करते थे कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो हम लोग जैसे रामगढ़ में ये 294 विलेजेस में काम करते गया धीरे धीरे, और भी कुछ जितना छोटा मोटा इश्यूज आया, कोर्सटेक टीम ने हम लोगों का मतलब रिक्वायरमेंट का हिसाब से उसको बहुत अपडेट किया। आज का दिन में हम लोग जब झारखंड में प्रधान के एक इंटरनल मीटिंग किया, उसमें समिता और तरु थी, तो वो लोग ने भी देखा कि कैसे और अपडेट हुआ और वो कितना जुक्तोधारा में इंटीग्रेट हो पा रहा है। तो इन फ्यूचर मेरे को लग रहा है और भी इसको अपडेट और भी हो जाएगा।
और इसको हम लोग प्रधान में भी डिसीजन लिया कि हम लोग हर कोई टीम में इसको इंटीग्रेट करने के लिए युक्तधारा पोर्टल के साथ कोशिश करेंगे, ताकि अभी तो सब लोग हम लोग जानते हैं कि इंजीनियरी जी और मतलब नहीं रहेगा, वीवी जी राम जी शुरू होने वाला है और थ्रू युक्तधारा पोर्टल ही होगा। तो इसके साथ हम लोग पूरा एक डिसीजन लिया है कि इसके थ्रू हम लोग और आगे कैसे बढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल, और इफ एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन you can ask. थैंक यू सो मच कनक जी। किसी के कोई भी सवाल या कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें? हाँ जी। थैंक यू कनक जी, दिस वाज रियली गुड। मेरे दो सवाल थे बेसिकली समझने के लिए। पहला सवाल ये था कि जो आपने प्लान बनाए कॉमन्स कनेक्ट में, तो उसको युगधारा में कैसे ट्रांसफर किया, कैसे, क्योंकि उसके लिए तो युगधारा का तो अलग ही पोर्टल होता है, उसका लॉगिन अलग होता है, तो वहां से यहाँ से वहां कैसे गया वो? हाँ, तो इसमें एक CSV फाइल, जो फाइल फॉर्मेट होता है, CSV फाइल फॉर्मेट यहाँ से ही तैयार हो जाता है डायरेक्टली हमारा जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के थ्रू। तो वो डैशबोर्ड के थ्रू हम लोग CSV फाइल तैयार करके उसको वहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करके एंट्री करते हैं। तो युगधारा पोर्टल में दे हैव दिस, अच्छा, तो वो लॉगिन करके आप युगधारा पोर्टल में लॉगिन करके इसको आप फाइल लॉगिन अपलोड करके, करते हैं? हाँ हाँ, और इसको जो इंटीग्रेशन कैसे होगा, वो लॉगिन आईडी पासवर्ड तो हम लोगों के पास नहीं होता है, लेकिन वो जीपी या हम ब्लॉक लेवल में इसको ट्रेनिंग भी दिया गया है कि कैसे इसको किया जाएगा, क्योंकि वो तो शेयर नहीं होता है। तो उन लोगों के लिए ये जो अलग अलग मतलब, और सबसे जो बढ़िया उन लोगों के लिए हुआ है कि हमको ये बार बार गांव में नहीं जाना पड़ेगा। हम अगर एक बार प्लान कर लेंगे तो हम धीरे धीरे इसको जुक्तोधारा पोर्टल का जैसे हमारा स्पीड रहेगा, उस स्पीड के हिसाब से हम फीड करते हुए जाएंगे। ठीक है, नहीं, थैंक्स वेरी मच फॉर दैट। तो इसके अंदर, सो द सेकंड क्वेश्चन व्हिच आई हैव इज, जो डैशबोर्ड जो बनाए थे, हम्म। तो डैशबोर्ड ये आप लोगों ने खुद ने बनाए थे या कोर स्टैक की टीम ने बनाए थे उसके ऊपर? नहीं, ये कोर्स टेक टीम बनाए थे, मतलब हम लोगों का हिसाब से क्या चाहिए नहीं चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, हर दिन डीडीसी मांगता था कि क्या रिपोर्ट है, तो हम लोग और इन डेप्थ मतलब डाइव किए थे, उसको इन डेप्थ गए थे कि कैसे हो सकता है। हम लोगों के साथ भी कोर्स टेक की टीम मतलब रेगुलर फॉलो अप इंटरेक्शन में रहा, तो ये एक जॉइंट इंटरवेंशन था। Okay. And thank you, Kanat I think this is a question for the core stack team. The suggestions जो आ रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर में कि कौन सी किस जगह पे कौन कौन से इंटरवेंशंस हो सकते हैं, जैसे कनक जी ने बताया था कि खड़े हो कहीं पे भी खड़े हो तो बता देगा कि यहाँ पे ये इंटरवेंशंस हो सकते हैं। तो दिस इज कमिंग फ्रॉम क्लार्ट और इज कमिंग फ्रॉम समथिंग समवेयर एल्स? Coming from Clark, as well as we have integrated with other data layers like Terrain, and also we have created some rule sets specifically for validating the site feasibility for probable sites, depending upon terrain, depending upon natural depression, depending upon the stream water, and also CLART. It's a combination of all. Yeah. Okay. Okay. Thanks, Amita. Thanks a ton for that. Yeah. But I just reason I came from this background was because हम लोगों ने यहाँ पे पहले जो एप्लीकेशंस बनाए थे, जो हम क्लाउड यूज करते थे, तो क्लाउड के अंदर से स्टेट गवर्नमेंट्स वर ऑलवेज रिलक्टेंट टू यूज क्लाउड बिकॉज जो उसमें से डेटा आता था उसको युगधारा में अपलोड नहीं कर पाते थे। तो वी गॉट स्टक ओवर देयर। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट काइंड ऑफ इनोवेशन सो दैट देयर इज अ सीमलेस forward from wherever the communities are planning to in Yugdhara, from in core stack tool to Yugdhara. Thank you very much, Kanad and Samita ji. Yes. So basically, we maybe in the next agenda which we are taking, we will also show that what Kanand was mentioning was about a GP-wise CSV file. So that was specifically for Yuktadhara, but similarly, we are also integrating for GPDP plans. The Gram Panchayat wise, people can really download the plans as a CSV file and KML files and upload into the portals. Oh, Yes, nice. Oh, ये that's great. That's nice.
I'm ये happy to एक hear that. है दैट वन थिंग आई नीड टू शेयर कि ये जितना सारा डीपीआर बने हैं ये तो एक्चुअली एक क्लिक में ही अपने पास आ जा रहा है। सो ग्राम पंच जो ग्राम सभा है एक्चुअली ये डीपीआर थ्रू ग्राम सभा में पालित होता है, उसके बाद ब्लॉक में जाता है, देन वो एंट्री होता है। तो ये एक पंचायत के लिए भी आसानी हो गया कि हमारा एक क्लिक में इतना प्लान आ जा रहा है और वो एक डीपीआर फॉर्मेट में आ जा रहा है। सो मतलब ये भी एक कैची थिंग्स है जो एक्सेप्टेड हुआ है ग्राम सभा में। एंड नाउ वी आर अपडेटिंग दिस इन हिंदी लैंग्वेज ऑल्सो, ताकि झारखंड में तो हिंदी लैंग्वेज चलते हैं, तो हिंदी लैंग्वेज में हो जाएगा तो और भी बढ़िया हो जाएगा उन लोगों को समझने के लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा लगा उन लोगों को। पहले से ये प्लानिंग करने में बहुत टाइम भी लगता था, एक एक करके प्लानिंग आना, और ये इसमें क्या दिख रहा है कि हमारा 3 से 4 दिन में एक गांव में प्लानिंग हो जा रहा है। और हम क्या बोल रहे हैं कि 30 दिन में मान लीजिए 294 विलेजेस का प्लान हुआ, मतलब एवरेज में देखेंगे तो पर डे हमारा 8 विलेज में प्लानिंग कंप्लीट हुआ है। तो इससे हम जब एक सिस्टम के थ्रू जा रहा है तो एक मतलब बिग मतलब कंप्लीशन हो रहा है, साथ में एक बिग चेंज भी आ रहा है बहुत कम टाइम में। आज का दिन में जो हमारा सीएसआर भी मांगता है कि बहुत कम टाइम में कैसे पूरा काम को कंप्लीट होगा हम जब एक सिस्टम के साथ जाते हैं। और हर बार एक क्वेश्चन रहा हम लोगों को, डीडीसी ने क्वेश्चन पूछा, काफी सारा इंजीनियर भी क्वेश्चन पूछा कि ये क्लैट तो हम लोग यूज करते ही थे, लेकिन इसमें क्या हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ ओपन डाटा सोर्स के साथ लिंक किया है, जो हमारा सॉइल टाइप का जो डाटा मिलता है आईएमडी से, वेदर फोरकास्ट जो मिलता है, ये सब डाटा जब हम लिंक किया और साइंटिफिकली इसको हम लोग समझाने का कोशिश किया है, बहुत अच्छा से वो लोग समझा और चीज़ों को एक्सेप्ट भी किया। मतलब एक साइंटिफिक डाटा बैकग्राउंड होने के बाद जैसे लोगों को समझाने का भी आसानी हुआ कि हाँ, ये थोड़ा-सा नॉट ओनली क्लैट, क्लैट के साथ बहुत सारा चीज़ इंटीग्रेटेड है और ये हमारा जो टारगेट था, विज़न था, उसको भी पूरा कर रहा है। और जो हम लोग प्लानिंग कर रहा है, वो एक साइंटिफिक बैकग्राउंड से हम प्लानिंग कर रहा है। ये नॉट ओनली हम एक चीज़ को देख के प्लानिंग कर रहा है, हम ग्राउंड वाटर को देख रहा, वहाँ पे मिल रहा है, सॉइल टाइप मिल रहा है, रन ऑफ मिल रहा है, सब कुछ का चीज़ को हम इंटीग्रेट यहाँ पे कर पाया। तो बैकग्राउंड में हम लोग जब डीडीसी के साथ बैठ के थे, तो ये सब साइंटिफिक बैकग्राउंड को भी डिस्कस हम लोग करते थे, जो इसको एक्सेप्टेंस के बारे में और चीज़ों को एनहांस किया एक्सेप्टेंस में। Thank you, Kanadji. Thank you very much. Probably reach out to you separately to understand this in much further detail, but great work. Thank you. Thanks, you and Coach. I'll have to drop off. Yeah, thank you very much. Yeah, hi. Hi, this is Anas. I'm from the Well Labs team. I have a question. So these rules that you mentioned, like the where cloud and other open data sets are being integrated, is that happening in KYL or is that happening in Yuktadhara? It's happening in Commons Connect. No, go ahead, go. Commons Connect and KYL both. I mean, the layers are the same, which you see on KYL and Commons Connect. Commons Connect is for site level planning. So, the layers that you see for CLART coupled with terrain and stream order, they are specifically in CLART. They are specifically in Commons Connect. Yeah. So, Sorry, where Kanaji was mentioning. Sorry, 1 second. Yeah. So where Kanaji was mentioning the system will tell where to do CCT or where to do LBCD. Is that happening in KYL? Sorry, Commerce Connect. yeah. So, there is Interesting. site suitability assessment that also happens in Yuktadhara. There are two modes in Yuktadhara, right? One is like a geospatial analyzed work plan. So it tells you at a GP level what all structures will be feasible at what size, but it's like more top down. So it's like a system telling you what can be done, and then you take it to the field. That's one route. The other route is the community telling you that these are the demands that we want, and then you integrate them into Yuktadhara, right? But when you are doing it with the community, you can also layer it at that level itself with a scientific validation that what kind of structures will be feasible.
So it's not like a one-click recommendation that at this particular site you should build this. It is more like this area seems to be good for groundwater recharge structures, and then the community knows that okay, they don't, like Kanaji mentioned, right, that this is probably not a good site for dug well, but it shows that this is a good area for recharge, so you might want to consider recharge structures instead of harvesting structures. um, yeah, so that's the kind of, so that validation is kind of then layered with what the community wants and then taken up to Yuktadhara. So that's the second route. Yeah, Samita. Yes, so I have attached the rule set Anas on the chat. This has been validated at multiple layers, and we are open to again recheck with couple of other experts. But initially, we validated this with few researchers and also with some NREGA engineers who actually use these rule sets. But these are not specific for the district level landscape. These are generic, like from the structure wise, like considering if the structure is check dam, what should be the acceptable value of slope, what should be the acceptable value of stream order, and how much of catchment area need to be considered as an acceptable, partially acceptable, or unsuitable. Similarly, with drainage distance, how far it is, and LULC. So this gives us a fair understanding of possible probable sites. Yeah. Thank you. Yes, thank you. That's interesting. I'll reach out for more details. Sure. Any other questions? Yes. Hi, Samhita. This is Radha here. I'm from Yeah. Reliance Foundation. Hi, I hi. think Yeah. I think we'll meet separately. But I think I have two questions, one from Pradhan and one from you. So one is in terms of, so one we clearly understand in terms of the water related structural planning, watershed, ridge to valley. So what are the other layers which are already added and tested in this platform to give you Yes. certain level of evidence-based planning help, which will anyway go to GPDP, as you said. And Right. with Pradhan, I think I have one question as to, so there's a lot of data which is available in the system, as you said, because your system is built around it from CLART and other layers. Uh, and we also know when the data goes to a GP level kind of planning. So there is something which may not match. So how do you do the ground truthing of this data that this is something which matches with the actual situation on the ground? So is there a process laid down, or what has been your experience specifically, because you have piloted in multiple number of villages? So I think it would be good if you could share that also. Sure. Kanan, you want to share the ground truthing process first, like how Pradhan is implementing? Then I'll answer the other question. Okay, okay. At first, personally, I tested this app in my own hand. So when मतलब एक्चुअली जब हम लोग जा रहा था, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, रेदर देन 294 विलेजेस. सो बेसिकली फर्स्ट है कि इसका जो एक्यूरेसी लेवल है ओनली 5 मीटर है. तो जो ऐप है कम्युनिटी कॉमन कनेक्ट ऐप का, तो ये एक सबसे बड़ा हम लोगों के लिए ये हो गया, आसानी हो गया काम प्लानिंग लेने के लिए. देन हम लोग जब फील्ड टेस्टिंग कर रहे थे, देखे थे कि मोटा मोटी नियर अबाउट 80 to 90% प्लानिंग गांव लेवल में जो हो रहा है वो एकदम एग्जैक्ट वहीं पे हो रहा है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे देख पा रहा था कि यहाँ का ईटी मतलब रेनफॉल पैटर्न क्या है, ड्राउट कंडीशन क्या है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कैसे चेंज हुआ है, तो सॉइल टाइप क्या है, ग्राउंड वाटर लेवल क्या है. तो वो सब देखते हुए हम लोग जब डिसीजन ले रहे थे और कम्युनिटी जब डिमांड कर रहा था, मोटा मोटी 80 to 90% तो मैचअप हो रहा था. मतलब कभी अभी तक ऐसा नहीं देखा है कि क्या क्या हमारा डिफरेंस आ रहा है. अभी तक तो डिफरेंस मतलब हम एक्सपीरियंस नहीं किया कम्युनिटी का डिमांड से, और स्टीवर्ड भी जो प्लान आज का दिन में ले रहा है
वो भी आज तक मतलब एक प्लान में भी नहीं बोला कि ये चेंज आ रहा है, कि मतलब दूसरा प्लान यहाँ पे होने का है लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है एक्चुअली। और दूसरा जो है लेयर हमको लग रहा है यहाँ पे ऐड ऑफ हुआ है, कि एक है कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी का जो पैटर्न यहाँ पे जो लेयर दिया गया है या डैशबोर्ड में भी दिया गया है, साथ में हमारा जो रेनफॉल पैटर्न है पिछले 5 साल का जो ओपन डाटा सोर्स से लेके यहाँ पे फिट किया गया है, वो सब डाटा भी हमको जो एक तो आईएनआरएम का प्लान हो रहा है, साथ में हमारा लाइवलीहुड का भी प्लान हो रहा है। अब लोगों को हम दिखाया था पीपीटी में कि गोट सेट का भी प्लान आया था। मतलब जो लैंडलेस पीपल है वो लोग भी यहाँ पे इंक्लूड हो पा रहा है हमारा, तो कोई भी सेक्शन यहाँ पे छूट नहीं रहा है थ्रू कम्युनिटी कॉमन कनेक्ट ऐप के थ्रू। हर कोई सेक्शन को, मतलब विलेज में जितना सारा पीपल का सेक्शन है, कम्युनिटी का सेक्शन है, हर किसी का प्लान यहाँ पे इंटीग्रेट हो पा रहा है, क्योंकि क्रॉपिंग इंटेंसिटी का पैटर्न है, आपका रेनफॉल का पैटर्न है, इवापोट्रांसपिरेशन का डेटा है, ड्रॉट सिचुएशन का एक दिया गया है। तो ये सब So में just to complement that, Radha. So I'll answer you on the ground truthing process. Most of the partners, yes, you are right. There could be a discrepancy into the data, especially on land use, land cover. Sometimes the data reflect as double crop, but on the ground it might show single crop. Sometimes the drought frequency here might be quite different. So what we try to do is, one is the partners informing us with the variation. This is like not on the scalable model, but for the scalable model, what we did is we have integrated feedback forms into the app itself. So when somebody is doing analysis on observing the data, like the groundwater balance or rainfall pattern or cropping intensity pattern or drought frequency or drought intensity, if they are feeling that this is something not very much in alignment with what community is saying, so they can always report back in the form of feedback, which comes back to the engineering team. So this is one way we are collecting the ground truthing process on the data sets. And because most of these data sets and layers are being updated as and when we have access and at various frequency intervals. So that's another way, like LULC is always updated. This is I'm trying to answer about the feedback integration right from the steward side and also from the analysis provided onto the app. Now, coming to the first question, I think I'm very grateful for Reliance because we have already started work initially we started with piloting in 10 villages in Banaskata, and then slowly we have moved to Pratapgarh, and then we had another two more districts which have come up with the plans. And so we have a training plan for Monday. And slowly from Odisha circle and Maharashtra circle, also the partners from Reliance are reaching out for the implementation. Now, the good point is because the one common umbrella is creating village climate resilient plan. So it will cover not only watershed of activities, which is like provision of accessing of surface water facilities for irrigation purpose like ponds, canals, etc., but also think on a longer term, like from the recharge structures. Apart from that, we have integrated layers related to agroforestry, just to ensure that if there are certain pockets where huge demands or discussions happen across the plantation drives, we can capture the plantation demands and community demands into that. And along with that, we also have a separate livelihood demand collection, which includes fisheries, which include livestock, which include parts from self-help groups, and also an opportunity for the clusters. In some pockets, there are clusters who drive the initiative. So we have given an open opportunity for all this to come together, and as a next step, also to think where these demands could be converged, like a possible way of converging. Some demands could go to the multiple departments for the fund allocation. So
that's a platform where they can directly add on to the various planning. Yeah, I stop here. I hope I was able to answer you, Radha. Yes, I got it. I think Yeah. we'll have a good discussion, but yeah, more or less I got it. Yes, thank you, Radha. So I think we have a hand raised from Meenakshi. Hi, Meenakshi here from PIA Foundation. Yes, So hi, thank you. Meenakshi. Hi, thank you, Kannad and Samitha, for arranging this kind of meeting. And it is good to have this kind of discussion also. Yeah, just to add what Kannad said, this is really an integrated tool, not only in terms of capturing commons. I can say it is a one-stop app for capturing jal, jameen, jungle, what we are talking about, this land, commons, forest and water, जानवर and जन माने people and livelihood livestock also. तो ये हम लोग इससे पहले भी आईएनआरएम करते थे लोगों के साथ बैठ बैठ के. कन्नड़ knows I was also earlier Pradhanite. I know very well the process of this process of INRM planning. It takes 10 days in a tola to interact, to have this जो भी लोगों जंगल ले जाते थे दिखाते थे, जमीन ले जाते थे दिखाते थे, तो उसको देखते हुए प्लानिंग करना, इट वाज अ वेरी टफ प्रोसेस. तो ये जो कॉमन्स कनेक्ट का जो डाटा मिलता है, दैट प्रोवाइड्स ए बेस फॉर ट्रिगरिंग द डिस्कशन विद द कम्युनिटी एंड आल्सो ग्राउंड ट्रूथिंग भी हो जाता है, लोग वैलिडेट भी कर लेते हैं. एंड I think this gives an integrated part to the planning process also. कभी कभी करते समय ना मैन्युअली लोगों के साथ बैठ के करते समय प्लानिंग कुछ पार्ट छूट जाता था, हो सकता है सॉइल हेल्थ छूट जाता था, या फिर कहीं फॉरेस्ट और लाइवलीहुड लाइवस्टॉक रिलेटेड चीजें छूट जाती थी. बट ये जो आप लोग का जो ऐप है, एक्चुअली हम फिया में इसको करा नहीं पाए, बट आई पर्सनली हैव वेरी कन्विक्शन कि ये ऐप बहुत बढ़िया ऐप है फॉर कैप्चरिंग डिफरेंट कॉमन्स and also the people and the livestock. Yes, So Meenakshi, livestock, I think we are at very initial stage with FIA. We have your stewards trained, like they are testing the app in your landscape. Yeah, but thanks yes, for this. yes. But I continuously influencing my team members. So actually I am not in that part. But Okay. जब जब टीम मीटिंग होती है और इस तरह का प्लानिंग का बात होती है, तो आई एडवोकेट फॉर कॉमन्स कनेक्ट. Yeah. I think Ashok is in touch with us. We have some Yes. people already trained. Yeah. Yes. Fine. Thank you. Yes. Thank you so much. Thank you, Meenakshi. So we'll have two more questions, Taru, and then we can go to the agenda. I think we have Rabindra and Dr. Babu. Yes, over Dr. Rabindra. Okay, I had a query. This is my first interaction with Commons Connect. I'm from Pradhan. So I was kind of trying to understand. One said that there is about 5 meters of variations because of. I had this query about laterally it's still manageable. What is the shift in vertical space? What kind of height or vertical axis? Because any variation might affect the storage capacity or the catchment calculation, etc. So, any thoughts on that? So, for the data processing, yes, I mean, I might not have the immediate answer, but yes, we have an high-end servers, like maybe I can come back on this question later, but I have noted down. Yeah, from say storage perspective, this variation might affect the storage capacity to a very great extent. So that was one of my query, and
Yeah, but I think we Earlier, I have had tried to kind of explore this, and I couldn't come to a good conclusion about it. So that's why this was my query. Thank you. okay. Okay, so but this is the primary prerequisites for code stack, because we are processing pan-India layers as well as processing at a granularity of tehsil as well as water body. So and that layers are more than 20 plus along with the other data set. So there is a documented process how the storage and happening. I can definitely share those document and also the writing work from the technology team. Thank Would you. that work? Thank you. Yeah, and probably if some, I think first design and then its execution and final output, if there is some kind of study that may also help us to understand its accuracy. Okay, Thank you. okay. I have noted down your query, Ravindra. Thanks for this. Yeah, it would be. I will appreciate if you can drop your email ID on the chat itself. Yeah. Sure. Now Sending over right to away. you, Dr. Babu. Yeah. Yes, good morning, madam. Good morning. Good morning. And it's a pleasure to be part of this team for having this meeting. And we had a good, nice training at Orissa. I think it's the step now we have to decide, start at a micro level at some gram panchayats based on the discussion. Then we'll be able to understand in a better way all these applications which you have been learning through the experienced friends from different parts of the country. So I think we should move ahead with your collaboration. That's Sure. So I'll write back to you, Dr. Babu, with the which landscapes you'll be testing or implementing, and then we can go ahead for the rollout. Yeah, I'll write back Thank you. on email. Thank you. Thank you. Yeah, over to you, Taru now. Sure, thank you. अभी थोड़ा कम समय बचा है, but I will still just do a very quick demo of the landscape stewardship network अच्छा, dashboard that's there. before that, I think हाँ संजीव जी माफ करिए, क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे इसको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रखने के लिए, है ना। अगर किसी को थोड़ी दिक्कत हो रही है, प्लीज आप बता सकते हैं। आई थिंक तारू, आई वुड अप्रिशिएट आप हाँ अगर हिंदी में करो। हाँ 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 ओके ठीक है। स्क्रीन दिख रही है ना समिता? हाँ जी, हाँ जी, दिख रही है। ओके ओके ठीक है। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में एक बार थोड़ा डेमो दिया था, ये डैशबोर्ड हमने बनाया ताकि अलग अलग जो संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हैं वो एक दूसरे का काम थोड़ा जान पाए अच्छे से कि कहाँ पे कॉमन्स कनेक्ट कितना यूज़ हो रहा है, कौन कौन से स्टीवर्ड्स हैं जो काम कर रहे हैं, किस तरीके के प्लान्स बनाए गए हैं। तो वो सारा एक ही प्लेटफॉर्म पर दिखाने की ये एक कोशिश है। तो यू कैन सी इधर कि वी हैव टोटल प्लान्स माने इतने गांव हैं जहाँ पे कॉमन्स कनेक्ट या तो पूरा यूज हो चुका है, प्लानिंग हो चुकी है, डीपीआर बन चुका है, या फिर अभी प्रोसेस में है, यानी कि अभी ट्रेनिंग चल रही है या प्लानिंग अभी अंडर प्रोसेस है। सिमिलरली दीज आर द टोटल डिमांड्स। तो इन सारे प्लान्स में अभी तक कितनी डिमांड्स आई हैं ये उसका एक पूरा काउंट है। देन यू कैन ऑल्सो सी वी हैव अ काउंट फॉर कि कितने अभी तक टोटल कितने डीपीआरस हैं जो कंप्लीट हुए हैं, उनमें से कितने सबमिट हुए हैं ग्राम सभा में और कितने अप्रूव हुए हैं ग्राम सभा से। तो ऑल ऑफ दीज आर ऑल्सो मेंशन। देन सिमिलरली यहाँ पे जो आप डिमांड सबमिटेड देख रहे हैं ये वो नंबर है जो जितनी डीपीआरस हमारी कंप्लीट हुई हैं, मतलब सीआरपीस की तरफ से कंप्लीट हुई है, रिव्यू हो चुकी हैं, उसमें टोटल कितनी डिमांड्स आई हैं। सो मतलब दिस इज द टोटल अमाउंट जो विच इज रेडी टू बी सबमिटेड टू ग्राम सभा।
राइट। यहाँ पे भी आप मैप पे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन वाइज देखना चाहते हैं या लैंडस्केप वाइज देखना चाहते हैं कि सपोज झारखंड में क्या क्या काम हो रहा है, तो झारखंड का आपको एक व्यू मिल जाएगा कि कितने गांव में काम हो रहा है, कितने डीपीआरस वहां पे बन चुके हैं, कितने सबमिट हो चुके हैं, कितने अप्रूव हो चुके हैं। आप इसको ऑर्गेनाइजेशन वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं। तो सपोज अगर आपको प्रदान के प्लान्स देखने हैं कि प्रदान में किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में काम हुआ है, तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा काम रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। वहाँ पे यू कैन सी कि द प्लान्स दैट हैव बीन क्रिएटेड। सिमिलरली इफ यू क्लिक ऑन अ प्लान, आप उसकी पूरी डिटेल्स भी देख सकते हैं कि वहाँ पे किस स्टीवर्ड ने काम करा है, उस प्लान का स्टेटस क्या है। पूरे प्लान की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। दिस इज सेम एज जो डीपीआर आपको कॉमन्स कनेक्ट यूज करने के बाद मिलता है, वो एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में मिलता है। यहाँ पे एक इंटरेक्टिव वे में आप वो सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि सेटलमेंट ओवरव्यू क्या है, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या क्या एनआरएम रिलेटेड वर्क डिमांड्स वहां से आई हैं, क्या क्या लाइवलीहुड डिमांड्स आई हैं, राइट। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो सी डिटेल्स ऑफ अ स्टीवर्ड। तो जैसे मैं यहाँ पर प्रदान रामगढ़, यहाँ पे आप स्टीवर्ड की भी सारी डिटेल्स देख सकते हैं कि इन्होंने कितने गांव टोटल कवर किए हैं, आ, आ, कितने गांव में वो काम कर रहे हैं, उसमें से कितनों का प्लान कंप्लीटेड है, उनके बारे में बेसिक डिटेल्स है ना। तो दिस इज अ वे फॉर अस टू ऑल्सो हाईलाइट कि किस किस सीआरपी ने क्या क्या काम करा है, ताकि सीएसओ को तो हम हाईलाइट कर ही रहे हैं, पर उसके साथ वी ऑल्सो वांट कि एक्चुअल में जो प्लानिंग हो रही है उसके पीछे कौन है, मतलब उनके क्या स्किल सेट्स हैं, उन्होंने कितने गांवों में काम करा है, किस तरीके के प्लान्स उन्होंने बनाए हैं, ताकि आगे जाके जैसे हम वर्कशॉप के दौरान भी हमने एक चर्चा ये की थी कि बहुत सारे हमारे सीएसओस में जो प्लानिंग होती है दैट इज वेरी प्रोजेक्ट बेस्ड, प्रोजेक्ट ड्रिवन। तो अगर 6 महीने की प्रोजेक्ट साइकिल है तो तब तक के लिए जो फंडिंग है दैट रिमेन्स वेल एंड गुड, बट उसके बाद का सस्टेनेबिलिटी कैन बी अ क्वेश्चन। तो the larger question for everyone here is to think कि इस तरीके का जो डैशबोर्ड है जहाँ पे हम हर एक सीआरपी की के जो एफर्ट्स हैं उन्हें हाईलाइट कर रहे हैं, इसको हम कैसे जो भी एनआरएम एक्टिविटीज को फंड करना चाहे उन तक लेके जा सकते हैं, ताकि वो इस डैशबोर्ड को देखे दे कैन डायरेक्टली चैनल द फंड्स टू सीएसओस। तो ये क्वेश्चन है जो हम सबको मतलब मिलके थोड़ा सोचना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है। तो मैं यहाँ थोड़ा पॉज लूंगी, अगर किसी के कोई कुछ थॉट्स हों, कोई सवाल हो तो हम वो ले सकते हैं। और बाकी मैं डैशबोर्ड का लिंक यहाँ चैट पर आई विल शेयर। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जब भी आपको टाइम मिले आप सब एक बार डैशबोर्ड एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। जो भी आपके थॉट्स हों यू कैन ईमेल अस, हम अलग से भी एक कॉल इसके लिए अरेंज कर सकते हैं। कुछ पार्टनर्स के साथ मैं ऑलरेडी थोड़ा इस पे फीडबैक ले चुकी हूँ, बट आई वुड वांट कि अब आप सब थोड़ा सा एक्सप्लोर करें और अपने थॉट्स शेयर करें। सो दिस इज द डैशबोर्ड, बट हाँ आई विल टेक अ पॉज हियर। और किसी के भी कोई सवाल, कोई क्विक सजेशंस? Hi, this is definitely a very amazing feature, and it directly gives visibility to a lot of stewards that the organizations has been training. Like
what is the objective here for to give the stewards visibility to other organizations and other stakeholders who would like to come and do work in that landscape, or to say that uh, these are the stewards who have worked on this project? So these two things are two different. Like if we want some Right. organizations to come and see which are the stewards available in any landscape so that they can go and directly tap into those stewards rather than building the Hmm. capacity from the scratch. So I Hmm. think the, the visibility of the stewards should be a bit further up of this dashboard. So I think it would be good to Hmm. have one feature to see all the stewards at a landscape. That's Right. Yes, yeah, no, thanks, Anas. This is like the next priority that we have. So it's dashboard ke we have both the cases, right? The first one is ki we want different CSOs to come and learn from each other, and maybe if there is a new CSO who wants to work in a landscape, we would it can serve as a learning resource or a discovery platform for a new CSO also. Um, right? Um, and the second one is, of course, uh, the visibility for a donor, right? तो दोनों ही यूज केस हैं कि एक संस्था भी दूसरी संस्थाओं का काम जान सके, और अगर डायरेक्टली दे वांट टू वर्क इन अ लैंडस्केप दे कैन डू दैट. If they want to work, if they want to learn what kind of efforts different CSOs are taking up, they can do that also. और दूसरा यूज केस ये है कि अगर कोई भी डोनर ऑर्गेनाइजेशन है या पंचायत ही है जो कहीं किसी एरिया में फंड करना चाहती है और वो देखना चाहती है कि इस एरिया में कौन कौन से CRPs हैं, उनके क्या स्किल सेट्स हैं, तो दे कैन ऑल्सो डू दैट. सो बोथ द वेज. कोई और किसी और का सजेशन? ग्रेट, थैंक्स अनस. ठीक है, तो ठीक है, आई थिंक मे बी अभी क्योंकि हमारे पास कम समय था डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करने के लिए, तो हम अपनी नेक्स्ट कॉल में भी डैशबोर्ड के ऊपर अच्छे से चर्चा कर सकते हैं. बट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक बार खुद सब एक्सप्लोर करिए डैशबोर्ड, और जो भी आपके सुझाव हैं इस डैशबोर्ड के यूज केसेस को लेके कि इसका क्या क्या यूज केस हो सकता है, उसको लेके आप यू कैन शेयर योर थॉट्स ईमेल के थ्रू, फोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, जैसे भी. मैं ईमेल पे आई विल इनिशिएट अ थ्रेड, तो आप सीधा उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हो, राइट? ठीक है, तो इफ देर आर नो मोर क्वेश्चंस, आई थिंक वी कैन टेक अ लीव for today's call. Okay. Thank you, everyone. Thank you so much for joining in. Thank you. Thank you, Taru. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.